Hello students. Yesterday I had posted statement of purpose, a video on statement of purpose SOP. So I hope you have heard it. But just for I'm going to revise it. Not every line, not line by line, but a quick revision will take on statement of purpose. What is it exactly? On page number 154. So exactly what is a statement of purpose? So we'll take read first the definition and then the format and then the sample. That's it. Today we are going to do that only. So if you hear it, if you listen it properly, carefully, it is going to give you lot of benefit. Okay, so what is a statement of purpose? A statement of purpose, SOP, is an application made to a university to seek admission to a particular course. It is an essay which describes you as a person, your aims and ambitions. It speaks about your journey of life and the qualities you have nurtured in the process. The the scorecard or the transcript gives your academic achievement. It is objective, but SOP gives an idea about your innate qualities and is subjective in nature. The SOP gives you an opportunity to show the special qualities which make you distinct from others. It explains why you want to join the course, which make you why you want to join the course, what is your liking, how you have developed your liking. It justifies how you will be able to achieve your aim. It also explains why you have selected a particular university. The SOP is a gateway to your career as the admission committee judges you or screens the application on the basis of the SOP received. Hence, it is a very important document. So, initially, till this, you had the application. You are familiar with application. When you are applying, when you are writing a letter, if you want a admission after 12th, now after doing your 12th, passing your 12th, you will apply for your higher education. You may go abroad, out of this nation, or you may go anywhere out of the state or out of the nation. So whenever you will apply for a particular course in a particular university or a institute, you will write an application to seek the admission. Yes, the application is different, but SOP is the letter, not letter actually. SOP, you are going to add that SOP, the paper of on which you will write the SOP. You are going to attach SOP with your application letter. Application is just a formal letter. It is quite similar, means it is सबका एप्लीकेशन एक जैसा ही होता है, बट SOP इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. तो जैसे हमने अभी पढ़ा SOP क्या है, SOP में क्या है, आपका खुद का ट्रैवल जो बताता है चाइल्डहुड से लेकर अब तक, व्हाट एकेडमिक सक्सेस यू अचीव, एकेडमिक सक्सेस क्या किया आपने, उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या किया आपने, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप इस पर्टिकुलर कोर्स में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, दैट यू हैव टू गोइंग टू राइट. तो SOP इज़ लाइक जस्ट अ स्मॉल एसे, छोटा एसे जैसा होता है SOP. उसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, उसमें कोई सैल्यूटेशंस नहीं है, उसमें कोई सिग्नेचर लाइन नहीं है, लेकिन सिर्फ पैराग्राफ के फॉर्म में जैसे हम एसे लिखते हैं वैसे ही आपको SOP लिखना है. एग्जैक्टली SOP में क्या लिखना है ये आपको एक बार समझ में आए, सो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू राइट. ओके, सो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि क्या क्या आता है उसमें, कि आपने पढ़ाई के बारे में आएगा, आपके इंटरेस्ट के बारे में आएगा, आपके क्वालिटीज़ के बारे में आएगा, हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर. ये डिटेल में आप लिख पाओगे, फॉर्मल लेटर में आप नहीं लिख सकते ये पूरा, बिकॉज इट विल बिकम अ पर्सनल. लेकिन SOP इज़ लाइक अ पर्सनल ओनली, इंडिविजुअल बेसिस पर आप अपना खुद का पूरा डिस्क्रिप्शन करते हो, एंड वाई यू आर वेरी क्लियर वाई यू वांट टू टेक एडमिशन इन पर्टिकुलर कोर्स. ये आपको क्लियर करना है SOP में, कि आप ऐसा सोचते हैं येस आई एम सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स, आप सोचते हो कि येस आई हैव द क्वालिटीज़, आप सोचते हो कि येस आई हैव द इंटरेस्ट एंड आई वांट टू
achieve some big things in that particular course with the help of the particular course. So ये सारा आपको डिफाइन करना है, ये आपको कन्विंस करना है कि हाउ यू आर सुटेबल. देन ओनली रीडिंग योर SOP दे विल डिसाइड वेदर टू गिव यू एडमिशन और नॉट. तो फॉर्मेट में क्या होता है, मैं छट से पढ़ती हूँ. देखो, द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसमें 500 वर्ड्स कम से कम आपको बोलते हैं लिखने को. 500 वर्ड्स में आपको SOP लिखना है. कितने पैराग्राफ्स में? तो 5 to 6 पैराग्राफ्स में. बिगिन विथ योर इंट्रोडक्शन. पहले पैराग्राफ में क्या आएगा? आपका इंट्रोडक्शन. टॉक अबाउट योर पर्सनल बैकग्राउंड, योर मेंटल मेकअप एंड योर एम इन लाइफ. सो वेरी क्लियरली यू हैव टू राइट योर इंट्रोडक्शन. आपका मेंटल मेकअप क्या है, मतलब योर विशेस, योर एम्बिशंस एंड योर पर्पस इन लाइफ. ओके. सेकेंड पैराग्राफ में you should speak about why you wish to join this specific program course, your area of interest. सेकेंड में आएगा कि why you are going to join that course. उसका रीज़न आपको वेरी क्लियरली आपको लिखना है. इन द थर्ड पैराग्राफ राइट अबाउट योर क्वालिटीज़ that would be helpful or suitable for the career goal objective. Show how your hobbies and extracurricular activities would be helpful in strengthening your goals. आपकी गोल क्या है, थर्ड पैराग्राफ में आपको लिखना है. आपकी क्वालिटीज़ क्या है, वो कैसे सूटेबल है ये करियर के लिए. यू हैव टू कन्विंस. सो थर्ड पैराग्राफ इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये आपकी गोल करने के लिए, अचीव करने के लिए कैसे हैं. सो दिस लेटर इज़ लाइक अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर मेंटालिटी, रिफ्लेक्शन ऑफ योर मेंटल प्रिपरेशन, कि आप रियली तैयार हो कि नहीं, प्रिपेयर हो कि नहीं, आप कितना तक कंप्लीट करोगे ये कोर्स. ये क्लियरली बता देता है, आपका कॉन्फिडेंस भी क्लियरली बताता है SOP. ओके. फोर्थ पैराग्राफ में क्या आता है, मेंशन योर एक्सपीरियंस इन द फील्ड और एनी इंटर्नशिप प्रोजेक्ट यू हैव डन. यू कैन स्टेट समथिंग विच मेक्स यू डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर एप्लीकेंट्स. तो आपका अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको लिखना है ऐसे ही फील्ड में, ऐसे ही प्रोजेक्ट में जो आपने किया होगा, कि व्हेन यू फाइंड दैट यस आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, दैट दिस आई कैन डेफिनेटली डू. ये अंडरलाइन करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना खुद का एक्सपीरियंस, छोटा सा एक्सपीरियंस आपको लिखना है. सो और लास्ट पैराग्राफ में एक्सपीरियंस लिखते वक्त इट मे बी जनरल भी हो सकता है, कि बहुत लंबा एक्सपीरियंस नहीं लिखना है आपको. ठीक है. एकेडमिक एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है, जहाँ पे आपको खुद का टैलेंट, स्किल, कॉन्फिडेंस, इसका एक्सपीरियंस खुद का आया है, ऐसा आपको लिखना है. ठीक है. और कंक्लूडिंग मतलब लास्ट पैराग्राफ में स्टेट हाउ एडमिशन टू दिस पर्टिकुलर कोर्स यूनिवर्सिटी वुड बी बेनिफिशियल टू यू एंड हाउ यू लुक एट इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म करियर पर्सपेक्टिव. तो ये कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वैल्यूएबल है आपके लिए, कितना मायने रखता है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, सक्सेस के लिए, ये आपको लिखना है. राइट द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस in clear and lucid language. Do not make spelling or construction mistakes. You should be convincing. Show determination in your career. तो आपका लैंग्वेज, अगर आपका थॉट क्लियर है, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका लैंग्वेज में भी वो आना चाहिए, वेरी क्लियर आना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में आपने लिखना चाहिए, विदाउट एनी मिस्टेक्स. योर पर्पज ऑफ चूजिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड यूनिवर्सिटी शुड बी in accordance with your career. Remember that your personality is reflected through this. तो जैसे मैं बोला, आपका मेंटल मेकअप, आपकी पर्सनालिटी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है कहाँ पे, SOP में. तो SOP तय करता है whether you are going to get the admission in that particular course or not. Okay. Highlight your qualities, life experience in such a way that your application should stand out from the rest. दूसरों से अलग होना चाहिए, दिखना चाहिए. ये एप्लीकेशन जो आप SOP लिखोगे ये दिखना चाहिए, डिस्टिंक्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. अरे यार.